Good morning everyone. In previous lecture, we done with theory part of first chapter from your textbook, that is rotational dynamics. Right now we are doing numericals. I'll explain all the numericals, but I want you to solve that. फाइन, तो मैं गिवन बताऊंगी, फॉर्मूला बताऊंगी, मैं जो आपको बताने वाली हूँ पूरा सॉल्व करके दिया हुआ न्यूमेरिकल्स है, बट मैं चाहती हूँ कि आप उसका गिवन देखो, फॉर्मूला देखो, देन क्लोज द विंडो, ट्राई टू फाइंड आउट आंसर फ्रॉम योर साइड. उसके बाद अगर आपको सॉल्व नहीं हुआ, देन गो थ्रू सॉल्यूशन प्रोवाइडेड बाय मी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. टिल question number 11 there are theory questions, and from question number 12 to question number 22 there will be a numerical part. So let's start one by one. First question, let's read it out. Somehow an ant is stuck to the rim of the bicycle wheel of diameter 1 meter. While the bicycle is on a central stand, the wheel is set into rotation and it attains the frequency of 2 revolutions per second in 10 seconds with uniform angular acceleration. Calculate number of revolutions completed by the ant in these 10 seconds, time taken by it for first complete revolution and the last complete revolution. आपको करना क्या है मैं बता रही हूँ. टाइम टेकन बाई इट फॉर फर्स्ट कंप्लीट रिवॉल्यूशन एंड द लास्ट वन. इसका मतलब क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिवॉल्यूशन 1 लेंगे, 1. रिवॉल्यूशन लास्ट इज 10. सो विद इन दैट हाउ मेनी रिवॉल्यूशंस आर देयर? 9 रिवॉल्यूशंस. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट थीटा इज इक्वल टू 1, theta is equal to 9. Why? Because of theta 10 is equal to 10 we know. And then we are going to find out difference between last and second last. Fine. So let's start with its solution. You can see it over here. First of all, given data है, R आपको दिया गया है 0.5 मीटर. Then initial velocity is 0. Then omega, that is angular velocity, is 2 rps. Time period given है 10 seconds. So we can solve. First of all we know that theta is equal to, मतलब omega is equal to theta by t. So theta is equal to omega into t. But we have two velocities over here. So let's find out its mean or average. It will be omega 2 minus, plus omega 1 divided by 2. Here we have omega naught plus omega divided by 2. Initially 0, finally it's 2 divided by 2. Omega average we got 1 rps. Then let's find out theta. Theta is equal to omega into t. T is given 10 seconds. So 1 into 10, it's 10 revolutions. Second, we have to find out its angular acceleration. Alpha is equal to theta upon t, but theta is equal to omega minus omega naught upon t. Just now we discussed that thing. So alpha is equal to omega upon t, that is difference in angular velocity divided by time. We have 2 omega का value है, omega naught 0, t is equal to 10. So alpha becomes 1 by 5 revolutions per second. Then according to kinematical equation, S is equal to ut plus half at square in translational form. Same equation in rotational become theta is equal to omega naught t plus half alpha t square. अब मैंने जैसे आपको बताया, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट रिवॉल्यूशन के लिए हमें थीटा 1 लेना है, 1 रिवॉल्यूशन, ओमेगा नॉट है 0, सो थीटा विल बी हाफ अल्फा टी स्क्वायर. फाइंड आउट फॉर थीटा 1 इज इक्वल टू 1. You can see it over here. Then theta 2 is equal to 9 revolutions. आप जैसे देख सकते हो 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, ऐसे 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3 करके लास्ट आएगा 9 revolutions. 9 revolution के लिए वापस आपको theta 2 is equal to 9 revolution लेके टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है. You can see it over here, right? And for last revolution, that is for 10th revolution, time is t is equal to 10 है, t2 हमें मिला है for 9 revolution. उनका difference लिया, you will get difference between last revolution and for the first complete revolution.
I hope you clear with this. Fine. Move towards next. Let's read it out first. Coefficient of static friction between a coin and a gramophone disc is 0.5. म्यू आपको दिया हुआ है. Radius of the disc is 8 centimeter. R है. Initially the center of the coin is pi centimeter away from the center of the disc. X दिया है. At what minimum frequency will it start slipping from there? By what factor will the answer change if the coin is almost at the rim? G is equal to pi square meter per second square यूज करना है. Fine. So let's go through its solution. म्यू आपको दिया गया है 0.2. R1 आपको दिया गया है पाई सेंटीमीटर, दैट इज पाई इंटू 10⁻⁻² मीटर. R2 गिवन है 8 सेंटीमीटर, दैट इज 8 इंटू 10⁻⁻² मीटर. G आपको गिवन दिया गया है पाई स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब हमें पूछा गया है विदाउट स्लिपिंग मूवमेंट करना चाहिए वो डिस्क मूव. सो फॉर दैट द कंडीशन इज सेंट्रीपिटल फोर्स इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स. Now centripetal force होता है either mv square upon r और mr omega square, and static frictional force होता है mu mg with its coefficient. Now omega is equal to 2 pi r, we know that. So 2 pi f हम लेंगे यहाँ पे, mm cancel, 2 pi f का square है 4 pi square f square r as it is equal to mu g. Now r is equal to r1 के लिए पहले फाइंड आउट करते हैं, तो f2 स्क्वायर f स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे पहले आप कन्वर्ट करके ले लो म्यू जी अपॉन 4 पाई स्क्वायर r. फॉर r इज इक्वल टू r1 हम लोग पहले फाइंड आउट करेंगे, f1 स्क्वायर इज म्यू जी अपॉन 4 पाई स्क्वायर r1. यहाँ पे आपको उसका वैल्यू मिल रहा है, आप चेक कीजिए. देन म्यू कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, 4 पाई भी कांस्टेंट है, तो f is inversely proportional to r we can write. So in this case you can write f2 upon f1 is equal to root of r1 upon r2. Now r1 we know pi, r2 we know 8. So f2 is equal to कितना आया, root of pi by 8 into f1. Right? आप ये सॉल्व करो. सॉल्व करने के बाद आपको जो टेक्स्ट बुक में आंसर दिए गए हैं वो मिलेंगे. जैसे कि आपने 5 अपॉन रूट 2 पाई किया, रूट 2 पाई मतलब रूट 2 इंटू 3.14. ये आप जब सॉल्व करोगे आपको टेक्स्ट बुक का आंसर मिलेगा. देन आप ये सॉल्व करोगे तो आपको टेक्स्ट बुक का आंसर मिलेगा. तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी सही है, यहाँ तक करोगे तो भी सही है. ज़्यादा से ज़्यादा टेक्स्ट बुक के आंसर पे डिपेंड मत रहिए. देर आर फ्यू मिस्टेक्स ऑल्सो. सो हम जो सॉल्व करेंगे वो सही है, आप यहाँ तक रखोगे परफेक्ट है. इफ़ यू वॉन्ट टू सॉल्व फर्दर यू कैन. Just go through it once. We'll move towards next. Okay, let's start with third one. It is question number 14. Part of a racing track is to be designed for curvature of 72 meter. We are not recommending the vehicles to drive faster than 216 km per hour. With what angle should the road be tilted? By what height will its outer edge be with respect to the inner edge if the track is 10 meter wide? पूरा न्यूमेरिकल एक बार अच्छे से रीड कीजिए, मैं क्या क्या दिया है समझ लीजिए. Moving towards its solution. R given 72 meter, V not given 216 km per hour. Now you cannot use this as directly kilometer per hour, so you have to convert it in the form of meter per second, and the value will be 60 meter per second. Right? Then आपको दिया गया है ओमेगा. ओमेगा नहीं, आप आर भी यूज कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है. जो आपको दिया गया है 10 मीटर, then g 10 meter per second square. Now we know that V naught square is Rg tan theta. So according to that, tan theta becomes V naught square upon Rg. Substitute all values, find out value of theta by taking inverse of tan. देख लीजिए एक बार. Then you can draw that diagram according to our given data.
then sin theta will become h upon omega. We want value of h, so it will become omega sin theta. तो हमने पहले थीटा कैलकुलेट करके रखा हुआ है. We are using that theta only directly. So omega we have 10, थीटा हमें 78 डिग्री 4 मिनट्स वहाँ पे मिला हुआ है. वो वैल्यू साइन के लिए फाइंड आउट कीजिए. यू कैन यूज लॉग बुक. लॉग बुक में नेचुरल साइन बोल के कॉलम होता है, वहाँ पे आपको 78 डिग्री 4 मिनट का थीटा वैल्यू मिल जाएगा. वो मिलने के बाद यू कैन find out value of h directly, and that h will be the height of outer edge of the track with respect to inner edge. Clear हो? आपके सामने solution है, but I want that आप check करो, आप solve करो, and then if you have any problem, तो आप क्या कर सकते हो, मेरा सॉल्यूशन देख सकते हो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15. द रोड इन द क्वेश्चन 14, मतलब सेम क्वेश्चन हमें रेफर करना है. अबाव इज कंस्ट्रक्टेड एज पर द रिक्वायरमेंट्स. The coefficient of static friction between the tires of the vehicle on the road is 0.8. मतलब mu का वैल्यू दिया हुआ है. Will there be any lower speed limit? By how much can the upper limit exceed in this case? Okay? तो हमें सेम वैल्यू, मतलब सेम 14 के सारे वैल्यूज लेके फाइंड आउट करना है कि अपर लिमिट कितने एक्सीड हम कर सकते हैं. फाइन. सो लेट्स मूव टुवर्ड सॉल्यूशन. यहाँ पे देखिए सारे गिवन वैल्यूज अगेन वी हैव टू यूज सेम. r इज इक्वल टू 72 मीटर, थीटा इज इक्वल टू 78 डिग्री 4 मिनट, म्यू इज इक्वल टू 0.8, g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड थीटा दैट इज tan थीटा वी आर गोइंग टू यूज विच इज 78 डिग्री 4 मिनट. क्लियर है? नाउ वी मिनिमम वी नो वैल्यू root of rg into bracket tan theta minus mu divided by 1 plus mu tan theta. आपको mu का वैल्यू पता है, r का वैल्यू पता है, थीटा का वैल्यू पता है, g का वैल्यू पता है. पूरे सारे वैल्यूज वहाँ पे डाल दीजिए, आपको वैल्यू मिलेगा 24.588 मीटर पर सेकेंड. इन योर question, I mean textbook, the answer is given in the form of kilometer per hour, so you can convert it by multiplying that by 18 by 5. Now track is heavily banked, the value is almost very high, so theta is greater than 45 degree. That's why there won't be any upper limit. देख लीजिए आप. Okay. Now next question, question number 16. During a stunt, a cyclist is undertaking horizontal circles inside a cylindrical well of radius 6.05 meter. How, if the necessary friction coefficient is 0.5, how much minimum speed should be the stunt artist maintain? Mass of the artist is 50 kg. If she or he increases the speed by 20%, how much will the force of friction be? पढ़ लिया? ओके, मूविंग टुवर्ड्स सॉल्यूशन. गिवन देखो क्या क्या है. आर आपको दिया गया है 6.05 मीटर, म्यू 0.5, जी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एम 50 kg एंड डेल्टा वी मतलब इंक्रीजेस बाय दिया है 20%. अब वी मिनिमम वैल्यू होता है रूट ऑफ आर जी अपॉन म्यू. वैल्यू पता है सारी. वी मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कीजिए. फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन हमें पता है म्यू जी होता है. म्यू वी नो, जी वी नो, फाइंड आउट. वेरी इजी.
आप एक बार सॉल्यूशन देख लेना, shut the window or minimize the window and try to solve it from your side. It's my humble request. Fine. Next point, question number 17. A pendulum consisting of a massless string of length 20 centimeter and a teeny bob of mass 100 gram is set up as a conical pendulum. Its bob now performs 75 rpm. Calculate kinetic energy and increase in the gravitational potential energy of the bob. And we have to use directly pi square as 10. Solution. Given L 0.2 meter, M 0.1 kg and 75 by 60, that is हमें दिया गया है 75 rpm. We have to convert it in the form of rps. So it will become 5 by 4 rps, g 10 meter per second square, and according to given value pi square is equal to 10. Now according to frequency, time period is reciprocal. So t is equal to 1 upon n, that is 1 upon frequency. We have 5 by 4 rps, so 1 upon 5 by 4, that is 4 by 5.8 second हमें मिल गया टाइम पीरियड. नाउ कोनिकल पेंडुलम का आपको टाइम पीरियड पता है 2 पाई रूट ऑफ एल कॉस थीटा अपॉन जी. स्क्वायर करो दोनों साइड का, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल कॉस थीटा अपॉन जी आएगा. नाउ डायग्राम ड्रॉ करने के बाद आपको यहाँ पे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा आप लिख सकते हो. कॉस थीटा क्या आएगा, h अपॉन एल, सो h विल बी एल कॉस थीटा. एल कॉस थीटा का वैल्यू हम यहाँ से लिख सकते हैं जी टी स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर. नाउ अकॉर्डिंग टू दिस आपके पास g का वैल्यू है, t का वैल्यू है, पाई स्क्वायर का वैल्यू है, l का वैल्यू है. सो यू कैन फाइंड आउट वैल्यू ऑफ कॉस थीटा. देख लीजिए एक बार बहुत ठीक से. एल कॉस थीटा इज इक्वल टू जी टी स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर है. सो जी टी स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर जो आपको मिलने वाला है, अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन फाइंड आउट कॉस थीटा. रेस्ट ऑल वैल्यूज आर देयर विद अस. से देन टेक रिवर्स ऑफ दैट एंड यू कैन फाइंड आउट थीटा वैल्यू. देन वी स्क्वायर हमें पता है आर जी टैन थीटा होता है, इसमें से वी स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए. यहाँ पे आपको जो थीटा मिलेगा यू कैन यूज इट ओवर हियर. देन आपको काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है, तो हाफ एम वी स्क्वायर, तो ये वी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है. एंड इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच होता है, बट यहाँ पे क्या हो गया है, वो चेंज हो गया है, लेंथ एल माइनस एच. सो एम जी एच की जगह आएगा एम जी इंटू एल माइनस एच. स्टेप वाइज देख लीजिए पूरा, मैंने जानबूझ के सॉल्व करके नहीं किया है. यू हैव टू सॉल्व इट फ्रॉम योर साइड. Next, question number 18. A motorcyclist is undergoing vertical circles inside a sphere of depth. The speed of motorcycle varies between 6 meter per second and 10 meter per second. Calculate diameter of the sphere of the depth. How much minimum values are possible for these two speeds? आपको v मिनिमम फाइंड आउट करना है टॉप के लिए, बॉटम के लिए, एंड डायमीटर फाइंड आउट करना है. क्या फाइंड आउट करना है क्लियर है, बाकी सब अपने आप से सॉल्व हो जाता है. लेट्स गो थ्रू सॉल्यूशन. देखिए यहाँ पे v1 आपको दिया गया है 6 मीटर पर सेकेंड टॉप पे, v2 आपको दिया गया है बॉटम पे 10 मीटर पर सेकेंड, एंड g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नाउ हमें पता है एट
बॉटम v2 स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस 4gr होता है. आप लेक्चर सुन के ये देख सकते हो. We want value of r, so it will become v2 square minus v1 square upon 4g. v2 we know, v1 we know, g का value we have. So in this way you can find out value of r. Diameter होता है twice of radius, so you can find out diameter also easy. Then top पे velocity होती है root gr, करो find out. Bottom पे होती है root 5gr, again find out करो. देखो एक बार पूरे steps, कोई problem नहीं आनी चाहिए. क्लियर है? ओके, नेक्स्ट. मेटालिक रिंग ऑफ मास 1 kg has moment of inertia 1 kg meter square when rotating about one of its diameters. It is molten and remolded into a thin uniform disc of the same radius. How much will its moment of inertia be when rotated about its own axis? Actually ये सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है. आपको बोला गया है मेटालिक रिंग है, मास m उसका दिया हुआ है, सही बात है. आफ्टर दैट रेडियस हम कंसिडर कर लेते हैं कैपिटल आर, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर हमें दिया है 1 मीटर kg मीटर स्क्वायर. नाउ वी नो फॉर्मूला क्या होता है. आप अगर देखोगे पूरा वो टेबल्स दिया हुआ, I इज इक्वल टू हाफ mr स्क्वायर आपको मिलेगा फॉर द रिंग. नाउ रिंग इज मेल्टेड एंड टर्न इनटू थीन डिस्क. लेट अस कंसीडर अगेन रेडियस r, मास m ही होगा. So moment of inertia about thin disc about its own axis, again वैल्यू इसका कितना होता है हाफ mr स्क्वायर. इसका मतलब जो रिंग का है अबाउट डायमीटर वही डिस्क का है अबाउट इट्स ओन एक्सिस. So there won't be any change in its moment of inertia value. It will remain same, that is 1 kg meter square. Okay. Next, question number 20. A big dumbbell is prepared by using a uniform rod of mass 60 gram and length 20 centimeter. Two identical solid spheres of mass 50 gram and radius 10 centimeter each are at two ends of the rod. Calculate moment of inertia of the dumbbell when rotated about an axis passing through its center and perpendicular to the length. हमें फाइंड आउट करना है. लो सॉल्यूशन देखते हैं इसका. गिवन है मास ऑफ स्फीयर 50 ग्राम, रेडियस ऑफ स्फीयर 10 सेंटीमीटर, मास ऑफ रॉड 60 ग्राम एंड लेंथ ऑफ रॉड 20 सेंटीमीटर. सही है. तो हमें पता है मास ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर कितना होता है 2/5 mr स्क्वायर होता है. अब आपको दिया क्या गया है, ठीक से पढ़िए. व्हेन रोटेटेड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, पासिंग थ्रू इट्स सेंटर बोला गया है, मतलब क्या है डिस्टेंस ऑफ रोटेशन एक्सिस कितना होगा 30 सेंटीमीटर होगा. नाउ मोमेंट ऑफ सॉलिड स्फीयर अबाउट दैट एक्सिस जो क्या होगा सेंटर से जाएगा एंड डायमीटर होगा, वो क्या होंगे एक दूसरे को पैरेलल रहेंगे. पैरेलल रहेंगे तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम आप यूज कर सकते हो. आई नॉट इज इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर. यहाँ पे क्या होगा आई स्फीयर इज इक्वल टू आई स्फीयर एट सेंटर ऑफ मास प्लस एम एच स्क्वायर. सही बात है, ये आपको मिल गया. सेकेंड वन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड हमें पता है एम एल स्क्वायर बाय 12 होता है. नाउ आपको दिया क्या गया है टू सॉलिड स्फीयर्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डम्बेल अबाउट रोटेशन ऑफ एक्सिस. दो सॉलिड स्फीयर है तो आपको दोनों साइड होते हैं ना वो, और बीच में रॉड होता है, तो दोनों साइड के स्फीयर को क्या करना पड़ेगा. देखो ये 2i होगा स्फीयर का प्लस i होगा रॉड का. अब 2i का वैल्यू कितना है 2/5 mr स्क्वायर है, तो यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यूज है. एक ये वाला है आई स्फीयर इज इक्वल टू आई स्फीयर सेंटर ऑफ मास प्लस एम एच स्क्वायर, और दूसरा है 2/5 mr स्क्वायर. कंबाइन कीजिए इनको
क्या मिलेगा आपको 2m इंटू 2/5r² प्लस h², ये सब किसका होगा, स्फीयर का होगा, प्लस ml²/12 ये किसका होगा, रॉड का होगा। तो आपको इसमें m का वैल्यू पता है स्फीयर के लिए, r का वैल्यू पता है स्फीयर के लिए, h का वैल्यू हमें पता है। उसके बाद हमें क्या दिया गया है, l का वैल्यू दिया गया है रॉड के लिए एंड m का भी वैल्यू दिया गया है रॉड के लिए। h कंफ्यूज मत होना, डिस्टेंस ऑफ रोटेशन 30, h इज इक्वल टू 30 है। तो आपको ये सारे वैल्यूज आपके पास है, तो आपको बस इसमें सब्स्टिट्यूट करना है एंड फाइनल वैल्यू फाइंड आउट करना है। प्लीज नोट इट डाउन केयरफुली। मास और रॉड में मास ऑफ रॉड एंड स्फीयर रेडियस कोई कंफ्यूजन नहीं करना है, अच्छे से वैल्यू डालना है और फाइनल वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्लियर है, फाइन। लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। A flywheel used to prepare earthenware pots is set into rotation at 100 rpm. It is in the form of a disc of mass 10 gram and radius 0.4 meter. A lump of clay of mass 1.6 kg falls on it and adheres to it at a certain distance x from the center. Calculate x if the wheel now rotates at 80 rpm. जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं उसका दिया हुआ ये सारा चीज हमें, इसका सॉल्यूशन अब हम देखेंगे। R1 दिया F1 दिया है 100 rpm, F2 है 80 rpm, राइट। देन M दिया है 10 kg, R 0.4 मीटर, स्मॉल m दिया है 1.6 kg। अब सबसे पहले क्या है, वो व्हील है, उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो कितना होगा, हाफ mr² होगा। देन व्हील एंड लंप ऑफ क्ले, उसके लिए हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, I2 इज इक्वल टू I1 प्लस mx²। देन कंजर्वेशन लॉ आपको दिया गया है, अकॉर्डिंग टू दैट वी नो दैट L इज इक्वल टू I ओमेगा होता है, सो I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2, ओमेगा होता है 2 पाई f, सो I1 2 पाई f1 इज इक्वल टू I2 2 पाई f2, 2 पाई कैंसिल होगा, बचेगा क्या, I1 f1 इज इक्वल टू I2 f2, I2 का वैल्यू है I1 f1 अपॉन f2। अब यहाँ पे आप देख सकते हो एक वैल्यू आपको मिला है I2 का I1 प्लस mx², दूसरा वैल्यू आपको मिला है I1 f1 f2, दोनों को कंपेयर कर लीजिए। I1 प्लस mx² इज इक्वल टू I1 f1 अपॉन f2, x का वैल्यू हमें चाहिए, तो ये mx² यहाँ रख दीजिए, ये I1 यहाँ पे माइनस हो जाएगा, I1 f1 अपॉन f2 माइनस I1 कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस f1 अपॉन f2 और f2 अपॉन f2 माइनस 1 जो कुछ है। अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ m डिवाइड कर लीजिए, आपको मिलेगा x² का वैल्यू। वी हैव ऑल वैल्यूज विद अस। I1 यहाँ से फाइंड आउट कर लीजिए, f1 हमें पता है, f2 हमें पता है, देन x² का स्क्वायर रूट लेके यू कैन फाइंड आउट x इजीली। गो थ्रू दैट। सॉल्व कीजिए पूरा का पूरा, यू विल गेट आंसर। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, an object rolls down along an incline that rises by 3 in every 5. The object gains a speed of √210 meter per second as it travels a distance of 5/3 meter along the incline. What can be the possible shape of the object? Clear है? Okay. यस, यहाँ पे आप सॉल्यूशन देख सकते हो। अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम साइन थीटा है 3/5, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, v इज इक्वल टू √10 मीटर पर सेकेंड है, l आपको दिया गया है 5/3 मीटर, g आपको पता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
Yesterday's lecture we discussed about rolling motion, उसकी velocity हमने find out की थी. So root 2 GL sin theta upon 1 plus k square upon r square. अब ये 1 plus ये जो term है k square upon r square उसके लिए हमने consider किया x. So root 2 GL sin theta upon 1 plus x. Square कर लीजिए दोनों sides का. V square is equal to 2 GL sin theta upon 1 plus x. 1 plus x यहाँ पे 2 GL sin theta upon v square. Now g we know, v we know, sin theta we have, L का value we have. Find out value of x from here, right? Then x is equal to k square upon r square. ये solve कीजिए. 1 plus x का value आपको कुछ मिलेगा. Then x is equal to that value minus 1. So x is equal to k square upon r square. We want value of that one only. K square upon r square is equal to कितना आता है, and according to that value वो कौन सा शेप है ऑब्जेक्ट का हमें देखना है. क्लियर हो? राइट. तो यहाँ पे we done with all the numericals. I want you to solve these all things. If you have any doubt, you can message me directly. I'll reply you. मेरे पास सारे solutions है वैसे भी, लेकिन मैं चाहती हूँ आप खुद solve करो. And I'll send you few extra questions according to the same formula. Just solve it and send it to me. Fine. Let's stop here for now. For any query, I'm there always. Thank you.